नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी फ्रैंक परेरा भी मौजूद हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए लोकतंत्र 2016, असम की 126, पश्चिम बंगाल की 294, तमिलनाडु की 232, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए मतगणना अब से कुछ ही देर में बस शुरू हो जाएगी। राज्यसभा टेलीविजन ने चुनाव परिणाम से जुड़े हर खबर को आप तक पहुंचाने के खास इंतजाम किए हैं। हम आपको दिखाएंगे पल पल के रुझान, बताएंगे कौन है आगे, कौन चल रहा है पीछे, किसने किसको मात दी है, किसने जीत का परचम लहराया है। और इस सफर को शुरू करने से पहले अब तक की सुर्खियां देख लेते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में अब से कुछ देर बाद मतगणना। रुझान और परिणाम के लिए राज्यसभा टेलीविजन ने किए खास इंतजाम। चुनाव वाले सभी राज्यों में मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू। असम में 1064 और पश्चिम बंगाल में 1900 से ज्यादा उम्मीदवार। तरुण गोगोई, सर्बानंद सोनोवाल, ममता बनर्जी, सूर्यकांत मिश्रा समेत दिग्गजों पर टिकी निगाहें। तमिलनाडु के चुनाव में 3500 से ज्यादा प्रत्याशी। जयललिता, करुणानिधि और विजयकांत समेत कई हस्तियों की किस्मत का फैसला आज। और केरल में एलडीएफ यूडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला, तो पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती। Well, like my colleague Arfo was mentioning, it is indeed a big day, a day that we've been building up for the last 2 months for, and many have termed it as a mini general election. Remains to be seen what really happens today. In a few hours from now, the numbers will start coming in. In fact, the numbers will start coming in by 8, but then in a few hours from now, we'll know what the trend really is and which way the election is headed. Whichever way it is headed, it's going to be a historic result this time around. Of course, the fate of two bigwigs, that is two nonagenarians, will be decided today, and of course the fate of several others too will be decided today. Joining us in our studio this morning to start off this continuous debate that we're going to have during the course of the day today, of course, is Parsa Venkateshwar Rao Jr., editorial consultant of the DNA. Also with me or with us is Aditi Fadnis, political editor of the Business Standard, and C. Lakshmanan, associate professor, MIDS. Thank you so much for joining us on the program. Aditi, historic election, of course, whichever way it goes, history is going to be made today. Well, I wouldn't be quite so dramatic. Yes, certainly for the people who are going to win, history is going to be made. But elections are pretty much, I mean, there's some election going on somewhere in India all the time throughout the year, 365 days. So, yeah, it's an important election, and more than anything else, eventually it will influence the numbers in the upper house where the ruling alliance does not have a majority at this point. So, from that point of view, it's an extremely important election. It will also mean that the sentiment currently, where the NDA is in power but has lost 2 or 3 elections consecutively, beginning with the trend in Delhi, that sentiment may be reversed. At least, you know, that BJP may put down roots in a state where it has never been able to form a government. This time. You know, Parsa, would you agree with that? It's going to have large-scale national ramifications. What's going to happen today? Too sure, you know. I know we are tempted to sort of interpret it that way, but I think we must not forget that these are state elections, and people are not voting with Delhi in mind. They are voting for their own local leaders, for their local governments, and I think we should sort of respect that. That it will have ramifications at the center is understandable, but the voter is not thinking of Delhi. The voter is thinking of Guwahati, voter is thinking of Chennai and Thiruvananthapuram and Puducherry and Kolkata. Indeed, indeed. और सी लक्ष्मण जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर MIDS में। सी लक्ष्मण जी, ये बताइए, फिलहाल की बात ये हो रही है कि बाकी राज्यों में जो चुनाव के नतीजे होंगे वो तो होंगे, लेकिन असम की खासकर बात हो रही है कि वहाँ अगर बीजेपी जीत पाती है, जिस तरह से सभी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की एंट्री को? No, BJP in Tamil Nadu, it's very difficult. They may have some vote, they gain some vote. मैं असम के बारे में खासकर बात कर रही हूँ।
I was no idea about Assam, but maybe they can make some inroad. I was completely out of touch in Assam. नहीं, आपको लगता है कि क्या तमिलनाडु का अगर खासकर जिक्र करें, चूंकि तमिलनाडु के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक फेस सेवर हो सकता है, जिस तरह के फिलहाल एग्जिट पोल्स जो नतीजे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर डीएमके की वहाँ पर सरकार बनती है तो क्या एक फेस सेविंग हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? Congress party never been very powerful in Tamil Nadu because always it is be biggie bag carrying either DMK or ADMK. नहीं, एक गठबंधन, एक कोalition के पार्ट के तौर पर. But they have been asking for a share in power. But I don't think DMK will lend itself for a coalition government. But it's all depends upon how the result going to be. जी. That is. चलिए, आप लोगों से हम बात करते रहेंगे, लेकिन कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन सभी राज्यों में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी अब से कुछ ही देर बाद. चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं. आइए एक नज़र डाल लेते हैं सुरक्षा की तैयारियों और सभी 5 राज्यों के सियासी समीकरणों पर. लोकतंत्र के लिए आज बड़ा दिन है. पहले बात पश्चिम बंगाल की. यहां 294 विधानसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने कुल 90 मतगणना केंद्र बनाए हैं. तकनीकी मदद के लिए हर केंद्र पर ECIL के कर्मचारी मौजूद हैं, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बल की 78 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं. वहीं दूसरी ओर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सामने जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी की सत्ता में सेंध लगाने की कोशिश में है. तीसरे छोर पर बीजेपी खड़ी है, जो इन चुनावों के जरिए सूबे में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की पुरजोर कोशिशों में है. असम की कुल 126 विधानसभा सीट के लिए कुल 51 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 143 मतगणना हॉल और 1771 मतगणना टेबल शामिल हैं. चुनाव आयोग ने कुल 126 यानी हर सीट पर एक पर्यवेक्षक तैनात किया है. कुल 5313 मतगणना कर्मचारी अलग अलग केंद्रों पर मौजूद हैं, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य सुरक्षा बलों की 3 परतें बनाई गई हैं, जिसमें सबसे बाहरी परत केंद्रीय सुरक्षा बलों की है. सियासी तस्वीर की बात करें तो बीजेपी के साथ असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है, तो उधर कांग्रेस सत्ता बचाने की कोशिश में है. जबकि तीसरे छोर पर AIADF है, जो पिछले चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी. तमिलनाडु की 232 विधानसभा सीट के लिए कुल 68 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. 13,000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना प्रक्रिया में लगे हुए हैं. यहां भी सुरक्षा की 3 परतें बनाई गई हैं. सियासी तस्वीर पर नजर डालें तो सत्ताधारी AIDMK का सीधा मुकाबला DMK और कांग्रेस गठबंधन के साथ है, जबकि तीसरे छोर पर DMK PWF गठबंधन दावेदारी ठोक रहा है. वहीं PMK और बीजेपी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश में है. केरल की कुल 140 विधानसभा सीट के लिए कुल 80 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. केंद्र सुरक्षा बलों की 100 कंपनियां सुरक्षा में तैनात हैं. सियासी समीकरण की बात करें तो सत्ताधारी कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF का सीधा मुकाबला CPM नेतृत्व वाली LDF से है, जबकि बीजेपी भी सूबे में अपना खाता खोलने की पुरजोर कोशिश में है. पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीट के लिए कुल 5 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ साथ राज्य सुरक्षा बल की तैनाती की गई है. सियासी तस्वीर के लिहाज से यहां सत्ताधारी NR कांग्रेस के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं तमिलनाडु की तरह DMK यहां भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है. तीसरे छोर पर DMK PWF गठबंधन और चौथे छोर पर AIDMK भी दावेदारी ठोक रही है.
हालांकि एनआर कांग्रेस के साथ 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी यहां इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं कि तमाम उन महत्वपूर्ण जगहों पर जहां से खबरें छन छन कर हमारे पास आएंगी, जहां से नतीजे आने वाले हैं और प्रतिक्रियाएं आएंगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और आपको मिलवाते हैं कौन कौन मौजूद है। श्याम सुंदर मौजूद है फिलहाल सीपीएम दफ्तर में, कृति मिश्रा बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। इन दोनों जगहों पर सबकी नज़र रहेगी कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आती हैं और जाहिर है बहुत कुछ इन दोनों पार्टियों ने दांव पर लगा रखा है इस चुनाव में। गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद होंगे पंचानन मिश्रा, असम से वो लगातार इन चुनावों को कवर करते रहे हैं पिछले कई हफ्ते के दौरान, और साथ ही प्रणब गोस्वामी कलकत्ता से हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से 6 फेज़ों में हुआ ये चुनाव, अब आखिरकार जब नतीजों का वक्त आया है तो किस तरह के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं और लोगों की, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर आयोग ने हर तरह की व्यवस्था की है, जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करते हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। चुनाव आयोग जो लीगल व्यवस्था है उसके हिसाब से काम करते हैं और इसमें किसी के साथ भी कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो हम समझते हैं कि चुनाव आयोग ने अपना काम निष्पक्ष तरीके से किया है, जिसके कारण इतनी भारी संख्या में वोटर पोलिंग बूथ पर वोट डालने आए हैं। जी हाँ, और केरल की हम बात कर रहे हैं। वहाँ वोटों की गिनती शुरू होने से पहले इस वक्त तक रहे मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोट्टायम में पूजा की। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल ओमान चांडी सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त और पूजा उन्होंने की है ठीक वोटों की गिनती से पहले। ये तस्वीरें ताज़ा आप देख रहे हैं। पंचानन मिश्रा संवाददाता गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणब गोस्वामी भी मौजूद हैं कोलकाता से। पंचानन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे कि इस वक्त माना ये जा रहा है कि इन तमाम जो चुनावी नतीजे हमारे सामने आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल दोनों तरीके से, अगर एग्जिट पोल्स की बात माने तो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि बीजेपी की जीत हो सकती है और उत्तर पूर्व के राज्यों में पहली बार बीजेपी दाखिल हो सकती है। आपको फिलहाल ज़मीन पे क्या कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल की अगर आप बात करें तो वहाँ लगभग सारे एग्जिट पोल्स में बीजेपी को विजेता दिखाया गया है। ये लगेगा कि हाँ, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा नतीजों का, क्योंकि यहाँ देखिए कई बड़े फैक्टर्स हैं। चाहे वो AIUDF हो, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम्स भी एक बड़ा फैक्टर है। 30% से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो वोट किसके साथ गया है। अभी कहना मुश्किल होगा, हालांकि पहला रुझान 8.5 तक मिलेगा हमें, लेकिन हाँ, ये असम की राजनीति में अगर बीजेपी का वर्चस्व नजर आता है तो ये पहली बार होगा कि पूर्वोत्तर का दरवाजा बीजेपी के लिए खुलेगा और इन पूर्वोत्तर के राज्यों में पहली दस्तक वो बीजेपी दे सकती है। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर असम की राजनीति को अलग बनाते हैं दूसरे राज्यों से, चाहे वो जाति का मसला हो, चाहे वो इथनिसिटी हो। तो इसलिए असम एक डिफिकल्ट राज्य है वो, और उसके लिए इंतजार मेरे ख्याल से करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो और AIUDF हो, तीनों लोग जो है इस बात को मान नहीं रहे हैं कि ये जिस तरह से दिखाया गया है बीजेपी के लिए, तो एग्जिट पोल को वो उत्साहजनक मान रही है और हम उसके दफ्तर के पास है, वहां तो मिठाइयां तक बन रही हैं। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि AIUDF का ये दावा है कि उनकी सीटें पिछली बार जो 126 में से 18 हैं उनसे ज्यादा बढ़ेंगी, और कांग्रेस को लगता है कि कहीं न कहीं वो जो माइनॉरिटीज का वोट है उसको मिलेगा, तो वो बीजेपी के लिए राह इतनी आसान दोनों ही पार्टियां नहीं मान रही हैं। जी हाँ, लेकिन पंचानन, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया, कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बनाया बाकायदा जो अखोम अस्मिता का जो मुद्दा था, जो कि राज्य की उस क्षेत्र की पहचान का मुद्दा था, आपको लगता है कि लोगों के बीच शायद ये बात घर कर गई? वाकई ये बात जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को आगे रखा, कहीं ना कहीं स्वीकार्यता हुई इस मुद्दे की? जी हाँ, देखिए ये बड़ी बात कही गई है और साथ में अहोम जो अस्मिता है उसकी बात तो की ही गई है। साथ में जो बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स हैं और जो बंगाली हिंदू
जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी बीजेपी ने जो है वो अलग से 2014 का एक बैरियर रखा था कि 2014 के तक जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उनको ये नागरिकता उनको यहाँ की दी जा सकती है। तो ये चुनाव के ठीक पहले ऐलान के ठीक पहले ऐसा किया गया था। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो सकता है, जिससे कि हो सकता है कि बीजेपी के कुछ अपने एलाइज भी उससे नाराज हो, लेकिन हो सकता है इसका उनको फायदा मिले। तो ये सारी चीजें चुनाव का जब बैलेट यहाँ पर ईवीएम मशीन्स खुलेंगी उसके बाद ही पता लगेगा कि जो दांव लगाए गए थे अलग अलग पार्टियों की तरफ से वो किस तरफ बैठेगा। ये वास्तव में देखना दिलचस्प होगा। Indeed, you know, we'll get a reaction from Kolkata as well. But before that, let's go across to Kriti Mishra, who's standing by at the BJP headquarters, and see what the mood like is there in at the BJP headquarters. Kriti, is the mood upbeat in the BJP headquarters? Because it looks like the BJP has a reason to smile after a long time, at least if you go by the exit polls. Well, Frank, the BJP is uberly confident of its victory in Assam, and it has completely denied any possibility of forging alliance with the AIUDF in Assam, and claims it will get an absolute majority on its own. On the other hand, as far as Kerala and Tamil Nadu are concerned, the BJP has lived in political oblivion in those states for a very long time. After drawing a blank in successive polls, the BJP hopes to bloom there. But remember, Frank, the exit polls have emboldened the BJP, but we had exit polls during Bihar elections as well. And there was the stark contrast between the exit polls and the actual results. So let's hold on our horses and let's hold it on and let's wait to actually tabulate and see how many lotuses have bloomed in these 4 states and in Puducherry. Over to you, Frank. But is that the approach that the BJP is adapting is really the question, because the mood, of course, in the BJP camp is upbeat. We understand that the Prime Minister also will be there later on during the course of the day, but at the BJP headquarters. But Aditi, taking this to you now, I mean, the BJP seems to be upbeat, at least at the moment. And, you know, can we see some kind of contentment as far as the BJP is concerned later on in the day? Because the BJP has suffered, you know, a string of losses of late. Yeah, sure. The thing is that in this election, the BJP had very little political capital invested. In Tamil Nadu, their own leaders concede that they have not really put down any serious roots. In Kerala also, they have tried very hard this time, but and particularly with an appeal to the Yerava community. But to be honest, I don't think too much should be expected from Kerala also. To be sure, in West Bengal, there had been some ground from people who are completely disillusioned, both from the Trinamool Congress and the Left Front. But even there, it's been pretty disappointing. So if Assam is in the bag, as exit polls are saying, then it's a major, major victory. I would just like to correct factually something that is the prevalent belief, which is that the BJP is entering the northeast for the first time. In fact, they already have a government with a kind of a tacit alliance in Arunachal Pradesh, where they actually helped to establish Kaliko Pul as Chief Minister. Indeed. So Indeed. it's not that they are out of... अच्छी बात है, ये आपने सही कर दिया कि फिलहाल पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जा सकता इस बात को। प्रणब गोस्वामी भी हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं और श्याम सुंदर सीपीएम दफ्तर से मौजूद हैं। श्याम सुंदर, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप वाम राजनीति को अच्छे तरीके से समझते भी हैं और फिलहाल ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स, अगर उसी पर यकीन किया जाए, हालांकि हर तरफ से हमें चेताया जा रहा है और कॉशन की बात कही जा रही है कि अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए। एग्जिट पोल्स बहुत हद तक बहुत बार गलत साबित हुए हैं और बिहार चुनाव में खासकर उसके बाद से तो काफ़ी कॉशन की ज़रूरत है हमें देखने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि केरल और पश्चिम बंगाल, इन दोनों में देखें, एक जगह पर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी और वाम दल, और दूसरी जगह पर जो है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये माना जाए वाकई कि जनता जो है, जिस तरह से अभी पारसा वेंकटेश कह रहे थे कि बहुत स्थानीय तौर पर जनता देखती है, स्थानीय तौर पर वोटर देखता है, उसको इसी स्थानीय टर्म्स में हम देखें या इससे बाहर भी देखने की ज़रूरत है? का सवाल है पश्चिम बंगाल में, ये लंबी बहस पहले पश्चिम बंगाल में चली, वाम मोर्चा के भीतर चली और ख़ास तौर पे सीपीएम की स्टेट कमेटी के भीतर चली, और वहां पर ये राय बनी कि लोगों
सेंटिमेंट है कि तृणमूल कांग्रेस को अगर हराना है तो वाम मोर्चा को कांग्रेस को साथ लेना ही होगा। इसके बाद जो केंद्रीय कमेटी है सीपीआईएम की, उसमें भी बहुत जबरदस्त बहस हुई और खासतौर पर केरला के जो यहाँ पर केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं उसमें कहा जाता है कि एसआर पिल्लई जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी हैं, 3 घंटे के करीब उन्होंने अपनी बात रखी केंद्रीय कमेटी में जब इस मुद्दे के ऊपर बहस हुई, और उसका जवाब सूर्यकांत मिश्रा जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे और अभी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वाम मोर्चा की तरफ से, उन्होंने उसका जवाब दिया। और अंततः कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर जिस तरह से बुद्धदेव भट्टाचार्य और राहुल गांधी ने एक मंच पर आकर चुनाव रैलियों को संबोधित किया, तो बहुत स्पष्ट तौर पर वहां पर कांग्रेस और वाम मोर्चे का न सिर्फ अलायंस बना बल्कि जमीन पर वो काम करता हुआ नजर आया। जहां तक सवाल है एग्जिट पोल्स का, आपने कहा कि एग्जिट पोल्स निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह से गलत साबित हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल रात को एक और बंगाली चैनल कोलकाता टीवी जो है उसने एग्जिट पोल किया और उसमें वाम मोर्चा को करीब 159 सीटें उसमें मिलने की बात कही गई है। तो लगातार आप अगर सारे एग्जिट पोल देखेंगे तो 160 से लेकर 253 सीट तक तृणमूल कांग्रेस को दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, क्योंकि केरल में काफी कंफर्टेबल स्थिति में एलडीएफ नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लगातार जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप रहे और जिस तरह से फैक्शनलिज्म को कंट्रोल करने में सीपीएम कामयाब रही और वीएस अच्युतानंदन और पिनाराई विजयन दोनों लोग जो है मिलकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, तो वहां पर एलडीएफ शायद उतनी मुश्किल स्थिति में नहीं है बल्कि एक बेहतर स्थिति में नजर आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती थी वाम मोर्चा के लिए कि वो आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़े, और ये देखा गया कि चुनाव परिणाम जो भी हों, लेकिन एक वाम मोर्चा के लिए उपलब्धि जरूर है कि एक आत्मविश्वास वाम मोर्चा की पार्टियों में और खास तौर पर सीपीएम के नेताओं और सीपीएम के काडर में नजर आया। वो जरूर एक राहत और इत्मीनान देने वाली बात है वाम मोर्चा के लिए। और माने जा रहा है कि अगर एग्जिट पोल्स की बात मानी जाए नहीं मानी जाए, दोनों तरफ से अभी कुछ ही देर में बहुत कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अगर मान ली जाए एक बार के लिए कि एग्जिट पोल्स की तरह ही नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई देश में बच जाएगी। करीब 6% के आसपास वो पूरा सत्ता का वो दायरा बचेगा जहां वो सत्ता में बाकी रह पाएंगी देश में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। लेकिन कोलकाता से प्रणव गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव, ये बताइए, फिलहाल उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल एक दूसरा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा सीटें वहाँ पर मौजूद हैं। 6 अलग अलग फेजेस में वहाँ चुनाव हुए हैं, राजनीतिक हिंसा भी देखने को मिली है, इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना पड़ा, बीच रास्ते जो हैं अधिकारी बदलने पड़े। इस सब के बाद अब जब नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से फिलहाल नतीजे हमें बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स के जरिए, क्या ज़मीन पर उसी तरह की आपको एक तरह से हलचल नजर आती है? देखिए, जब हम पूरे चुनाव के दौरान 2 तरह की तस्वीरें थी। एक तस्वीर ये बताती थी कि पहली बार जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। आमतौर पर देखा गया है कि जो विचारधारा की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे दिखाई देती है पश्चिम बंगाल के चुनावों में, लेकिन इस बार करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और तो सभी दलों ने, जो सत्ताधारी टीएमसी है उसके खिलाफ काफ़ी आरोप लगे थे, उनके लीडर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व है, इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई थी 2011 में। पूरी तरह से ये कहा जाए कि चाहे 2011 की बात करें या 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस और लेफ्ट जो उनका जो जनाधार था वो पूरी तरह खिसक गया था, और इसी वजह से जो परिस्थितियां बनी थी वो अपने आप में अभूतपूर्व थी कि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़े इस दौरान। तो ये अपने आप में जो है दोनों जो परिस्थितियां थी कि एक तरफ नारदा स्टिंग और इसके अलावा शारदा चिटफंड घोटाला या फिर जो विवेकानंद फ्लाईओवर के गिरने की घटनाएं हुई, उससे काफ़ी कुछ ये कहा जाए कि बैकफुट में आई थी जो सत्ताधारी दल है। और लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें कि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही कि उनके कार्यकाल में विकास हुआ है, और साथ ही साथ जो चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए। पहली बार देखा गया कि 250 से ज़्यादा जो चुनाव अधिकारी थे, चुनाव की प्रक्रिया जिनके जिम्मे पर थी, उनका तबादला किया गया, उनको पदों से हटाया गया, विशेष एहतियातन कदम उठाए गए। इन सब के बीच ये पूरा जो चुनावी संग्राम था ये हमको देखने को मिला। लेकिन आज इन बातों के ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ निर्भर होगा कि 8 बजे के बाद जो ट्रेंड सामने आएंगे ये साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल सच कह रहे हैं या फिर उससे उलट
ममता बनर्जी को जो लेफ्ट और कांग्रेस है उससे चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने काफ़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन देखना होगा कि क्या किसी तरह की सफलता बीजेपी को मिलती है। जी हाँ, और बहुत दिलचस्प बात यह है कि श्याम सुंदर बता रहे हैं कि वहाँ का जो एक लोकल चैनल है वो बता रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो बेहतर सीटें, ज़्यादा सीटें हासिल कर पा रहा है फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। तो बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के एग्जिट पोल्स होते हैं जो कई मायनों में कई बार बहुत गलत साबित हुए हैं, बिल्कुल उल्टे भी साबित हुए हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल सही भी साबित हुए हैं। और फ्रैंक, इस वक्त चेन्नई से अखिलेश सुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। Indeed, Akhilesh Suman joins us from Chennai. Let's go down to Akhilesh Suman and get a sense from the ground there in Chennai. You know, Akhilesh Suman, Jayalalitha has been very confidently saying that she's going to win hands down and nobody is going to unseat her this time around. But, you know, as far as some of the exit polls go, they're saying that the DMK Congress alliance is ahead and could possibly form the next government. And if you go by history, that's what's happened over the last few years where we've seen alternating governments. Yeah, Frank, you are right that history is the only equipment that DMK can claim that it is going to win. And also for Jayalalitha, it is denying the history, because in the last election, Jayalalitha had won 150 seats out of 234. And that confidence is there in Jayalalitha that this time, though there is anti-incumbency vote, there is anti-incumbency, but it is not a big wave. If you go through the people, if you go through villages and towns, there is a sense of anti-incumbency against the corruption. But what is the best thing about in favor of Jayalalitha? That she has the grip on administration. And people say that, okay, there is some lack of democracy in Tamil Nadu, but there is an administration we feel. That these things are in favor of Jayalalitha. But then again, the DMK is the party which has developed out of Dravidian movement in a very big way. They have the very big movement behind them. So though M.G. Ramchandra was also part of Dravidian movement, but it was Karunanidhi who was the main inheritor of the Dravidian movement in the state. So they have a grassroots worker everywhere in the state. In the last election, they had been defeated, decimated by Jayalalitha in a very bad way. It could be the worst way, because they were the third party in the assembly here. Only 23 seats out of 234. But people are telling, the DMK is also claiming that this time we are going to win because the people must have forgotten the incident before 5 years, because it was 2G spectrum, it was a corruption cases against many of the leaders of DMK. And also people also tell that DMK is the party that when it was in power, the whole workers of DMK were acting like they are local chieftains. So these things are also against DMK in the state. So it is anti-incumbency against both Jayalalitha and also DMK. So it is very interesting situation that 5 years before anti-incumbency is working against DMK, and now anti-incumbency is working against AIADMK. So this is the situation. It will be very interesting to see how things unfold after it. इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि जिस तरह से माना जा रहा है कि जयललिता, जो कि लगभग 40 साल अब उन्हें हो चुके हैं जब से उन्होंने राजनीति में दखल दिया, राजनीति में उन्होंने कदम रखा, खासकर जो चेन्नई की बाढ़ थी उसके बाद से ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री देखने को भी आसपास नहीं मिली कहीं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ी वजह है कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी रही। अगर कोई संभावना भी होती कि वो इतिहास को पीछे छोड़ते हुए, जिसमें हमेशा एक के बाद दूसरी पार्टी की ही सरकार आई है, अगर उसको भी पीछे छोड़ते हुए अगर वो आ पाती तो इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देखने को भी नहीं मिली। ना, निश्चित तौर पे अरफा यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जयललिता के लिए, क्योंकि पिछले साल जब बाढ़ आया और उसके बाद जयललिता, पिछले साल के पहले भी एक्चुअली जयललिता एक अजीब तरह के मुख्यमंत्री के रूप में काम करती रही। पिछले 5 सालों में उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, उन्होंने अपने विरासत अपनी पार्टी के एक नेता को दिया, फिर उनको हटाया, फिर वो कुर्सी पर बैठी। तो इस तरह के नाटकीय घटनाक्रम हुए जयललिता के पूरे मुख्यमंत्रित्व काल में पिछले 5 सालों में। और जनता के अंदर भी थोड़ी सी कसमसाहट है कि जिस नेता को हमने 150 सीट देकर चुना था, उसकी यह स्थिति है कि वह इस तरह के छोटे छोटे मामलों में अपने को नहीं बचा पाती है, वो जेल भी जाना पड़ा उनको। और चेन्नई बाढ़ का मुद्दा है, सच में बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को ये फीलिंग है कि उस तरह से हमको उपकार नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरी बात है, जो
खास करके जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्गों के बीच में जयललिता ने जो बंटवाए हैं, पंखे बंटवाए, मिक्सी ग्राइंडर बंटवाए, और उसका क्या असर है, गहने भी दिए गए, सोना भी दिया गया। तो ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट की बात है, जो सीधे इंडिविजुअल की जेब में जाती है, यह भी जयललिता ने किया है। तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि जयललिता दिखी नहीं, देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पूरे ट्रांसपेरेंसी का अभाव था पूरे गवर्नेंस में। कोई कार्यकर्ता जाकर नहीं मिल सकता, कनेक्ट नहीं करता अपने आप को जयललिता से, लेकिन एक भक्ति भाव रही है जयललिता में भी और उनके जो समर्थक हैं। तो यह देखना बड़ा ही रोचक होगा इस बार अरफा की सच में जयललिता का जादू कितना चल पा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं यही से इस क्यू से उठाना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी जो भक्ति भाव का जिक्र करा, जिस तरह से एक तरह से कभी हमने देखा कि जयललिता जो लार्जर देन लाइफ जो उनका रोल रहा, उनको एक नेता से ज्यादा एक भगवान के तौर पर जो पूजा जाता है वहाँ पर तमिलनाडु में, क्या आपको लगता है कि उनकी ये इमेज कभी भी नहीं रही कि वो हैंड्स ऑन पॉलिटिशियन कभी नहीं रही, जिनसे जो जाके लोग बात कर सकते थे या उनको अप्रोच कर सकते थे, या वाकई जो अक्सर देखने को मिल जाया करती, और इसलिए इस बात से बहुत फर्क भी नहीं पड़ता कि जो चेन्नई की बाढ़ आई उसमें वो थी मौजूद या नहीं थी? No, this is a very peculiar to Tamil Nadu voters and Tamil Nadu as a whole, because the politics last 70 years or 100 years there, they are trying to reconstruct a social structure and also reform the society, but unfortunately it is not happened. What happened, only shift power from one social group or hegemony to another hegemony, and where you have carry forward all the exposed values of feudal and feudal culture, and therefore there is constantly these people invoking the past, and also constantly people, the leadership in both the DMK and ADMK invoking the past, as well as providing some kind of a freebie. And this freebie is a giver and a receiver, and basically it's a feudal culture, and where the people expected of the state authority, either chief minister or the government, is elected by themselves, not they are come from any messiah kind of thing. But and unfortunately Tamil Nadu, though the rational movement and rational politics was exposed, but somewhere we have lost the line. All right. Partha, very interesting what Lakshmanan is saying. The political leaders in Tamil Nadu seem to be larger than life, and that's probably why they give out freebies as well, in such a big way to show the people that they are giving them something, they are the giver of sorts. And that's what we've seen over the years. And even this time around, Jayalalitha has announced so many freebies for the people of Tamil Nadu. I think Lakshmanan has pointed out correctly that the Tamil Nadu politics, the protest politics of the Dravidian movement, rationalism was its basis. But somehow the rationalism did not translate when it came to electoral politics, especially after MGR. And even in the time of Annadurai, remember Annadurai was a very iconic figure in the 60s and 70s, and he brought the DMK to power. And as a matter of fact, MGR thought that he was going to continue the tradition of Annadurai, and then he built his image on that. And Jayalalitha inherits the image and the iconic status of MGR. So the personality politics, which is necessary in electoral the fray, I think dominated, and naturally the Dravidian politics, whatever its rationality, just failed to translate into the political arena. Indeed. Aditi, a worrying cause, of course, a cause of concern is the fact that, everyone knows that Jayalalitha's health is deteriorating. So if she becomes the chief minister, you have a chief minister, we do not know how many years she can continue at the helm, being as fit as a fiddle. And then if you look at the other end of the spectrum, there's the DMK, and its chief ministerial candidate will probably be the 93-year-old Karunanidhi. Well, these things are a factor of any election. If, nobody lives forever, and succession is always a problem. But the thing about Tamil Nadu is you have to look at the plus side also. The plus side is that Tamil Nadu, the second highest, third highest FDI all over Indian states has flowed into Tamil Nadu in the last 5 years. Tamil Nadu is the third most urbanized state in India. The roads are in very good shape there. Administration is excellent,
And the most important thing is that policies started by a government are not reversed by a successive government. So you have a continuity of policy, which has probably created an infrastructure because of which, I mean, name me one auto company which is not there in Tamil Nadu. All of them have invested. I'm not saying there is no corruption, particularly in the builder stroke real estate arena. There is a lot of money is paid to use, to get land use changed, to get clearances, etc. But at the same time, administration in Tamil Nadu is very much aligned to the people, which is not the case in other states of India. लेकिन अदिति, जिस तरह से देखा गया तमिलनाडु में इस हद तक फ्री बीज बांटे गए हैं कि मजाक का एक पर्याय बन गया है। इंटरनेशनल मीडिया तक ने इसको रिपोर्ट किया कि किस तरह से गाय और बकरी तक दिए जा रहे हैं, और एक ऐसे राज्य में जहां पे गरीब से गरीब वोटर को भी आप लैपटॉप्स देने की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी हद तक इस पर काबू भी पाया है? हम जानते हैं कि 2 कम से कम सीटों पर जो है दोबारा चुनाव हुआ, क्योंकि बताया गया कि इतना भ्रष्टाचार हो चुका था कि बिल्कुल इट वाज इन योर फेस। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इस पूरे कल्चर पर काबू नहीं पा पाया है? क्या पर्सनैलिटी जो पॉलिटिक्स है, वो जिस तरह से फ्रैंक पूछ रहे थे कि जो एक गिवर वाली भूमिका है कि आप नेता नहीं, आप भगवान हैं, आप जो हैं जो एक भक्त राजनीति है, उस सब का एक हिस्सा है क्या? इसमें कई तहें हैं जिनको गहराई से हमको आकलन करना पड़ेगा जिनका। उदाहरण के तौर पर निश्चित रूप से सामंतवादी जो संस्थाएं हैं वो अब भी तमिलनाडु में पूरी तरह से बरकरार हैं, और तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ जिस तरह का अन्याय होता है, हालांकि दोनों पार्टियां दलितों के उद्धार के स्लोगन पर आई हैं सत्ता में, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो तमिलनाडु में पार्टियों का जो पूरा संगठन है वो इतना पुख्ता है कि आप बिना पैसे के उसको चला ही नहीं सकते। हर वार्ड के लिए एक पार्टी का वर्कर है दोनों पार्टियों में, और वो बार बार प्रलोभन देता है कि आप कैसे चुनाव में किस तरह से आपको वोट देना चाहिए। बहुत ही संगठित, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही संरचित एक संगठन का दोनों पार्टियों और वोटर भी इसी तरह से ट्रेंड हो गया है, और वोटर भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो बल्कि एक हमारी बात हो रही थी एक वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट हैं उनसे, वो जयललिता पिछले चुनाव के पहले अपने ब्यूरोक्रेट से पूछ रही थी कि इस बार हम क्या दें लोगों को। तो आपको लगता है नई राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है? कैसे राजनीति जो साफ सुथरी हो, पारदर्शी हो? देखिए, हर राज्य में अपनी वीकनेस होती है। तमिलनाडु में, और जहां आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि यदि जातिगत किसी तरह की हिंसा होती है तो इलेक्शन कमीशन फौरन बीच में कूद के और इलेक्शन काउंटरमैन कर सकता है। लेकिन पैसे के लिए हमारे देश में, आपको आश्चर्य होगा, कानून ही नहीं है। और इसीलिए शायद चुनाव सुधार की जो बार बार बात होती है, इसका महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें, और तमिलनाडु के अलावा मेरे ख्याल से देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर पैसे की इतनी बड़ी भूमिका हो चुनाव। तो 2 और हमारे संवाददाता फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और वहां से खबरें इकट्ठा कर रहे हैं हमारे लिए, और जाहिर एनालिसिस भी हम उनके साथ कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ विशाल दहिया मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिस, कांग्रेस दफ्तर, जहां अरविंद कुमार सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी। अरविंद जी, ये बताइए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए एग्जिट पोल के हिसाब से तो बहुत अच्छा दिन फिलहाल नहीं है। माना जा रहा है कि जिस अभी फिलहाल शक्ल में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है फिलहाल 2016 में, कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा सिकुड़ जाएगी और एक बार फिर से बैठने का, वापस बोर्डरूम में वापस जाने का वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए है। सोनिया गांधी और खासकर राहुल गांधी के भविष्य को लेकर भी चिंताएं हैं। देखिए, बेशक आरफा जी, जो ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो ये चुनाव के जो नतीजे होंगे वो एक बड़े भारी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो जहाँ तक असम की बात है वहाँ 3 बार से लगातार पार्टी सत्ता में रही है। हालांकि दावा ये कर रहे हैं, फिर भी वो एक बेहतर हालात में होगी, इनके जो लीडर्स कह रहे हैं। और जो केरल की जहाँ तक राजनीति है तो वहाँ आर या पार की लड़ाई चलती है तमिलनाडु की तरह, जैसा कि अभी आप लोग बातचीत में जो कह रहे थे कि जो पैसे की राजनीति काफ़ी प्रभावी है, और गठबंधनों की जो दोनों की राजनीति है वो भी काफ़ी अहम है।
तो मुझे कुल मिलाकर के लग रहा है कि इनकी जो निगाहें हैं वो पौंडीचेरी जो कि बहुत ही छोटा सा राज्य है, पुडुचेरी, वो उस पर टिकी हुई हैं। अदरवाइज जो है कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि नहीं, असम में वो बेहतर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि ये जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं आरफा जी, इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उसमें जो है पूर्वोत्तर भारत का जो प्रवेश द्वार है असम, वो काफ़ी बड़ा स्टेट है। तो कुल मिलाकर के जो है जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो अभी नतीजों के बारे में वो बहुत अनिश्चित हैं खुद। लेकिन ये तो सही बात है कि ये इन दांव पर ये लगे हुए हैं। जी जी। Indeed. Let's go across to Vishal Daya, who's standing by in Tirunanthapuram as well. Vishal, as far as Kerala is concerned, everyone's saying that it's going to be a neck-and-neck battle between the LDF and the UDF. Oman Chandi, in fact, has gone out to say that no matter what happens, he's going to form the next government in Kerala. Well, yes, Frank, you're right. In fact, this is one state wherein it's an interesting contest if you look at from the national politics, the perspective of national politics, because at the national level, the Congress and the left have joined hands against the BJP. And similarly, in West Bengal, they were fighting together against the TMC. But out here in Kerala, they're facing each other. They were in a very close contest during the campaign. Also, we witnessed, sharp, verbal duel which happened between the UDF and LDF leaders. UDF, which is led by the Congress, LDF, which is led by the left parties. And today, many people would like to witness or rather have a look at exactly what is going to happen in this southern state, because while the UDF is claiming a victory again, that would mean that the voters of Kerala would have bucked the trend. That is, the state have always witnessed a change of government every 5 years, just like the neighboring state of Tamil Nadu. It's UDF for a first 5 years and then LDF for another 5 years. LDF on its part is claiming that it will, emerge victorious. In LDF camp, we've seen how the 2 senior leaders, that's Achyutanandan and Pinarayi Vijayan, have set apart their differences. They were seen campaigning together, even in each other's constituency as well. That is something which seemed to have sent a positive signal to their cadre. The similar sort of unity was witnessed in the Congress camp as well. But what might make things difficult for both UDF and LDF, on several seats where the margin of victory is very narrow, is the emergence of the third front, the so-called third front out here in Kerala, which is led by the BJP, which is trying its hand to, gain a foothold in the politics of Kerala, to open its account in the state along with a small regional ally, BJDS. So whether or not the BJP and BJDS will open their account is something which everybody will look forward to. But what will be the effect of the votes garnered by these 2 parties? Will it hurt UDF more or will it hurt the LDF more? We'll have to wait for at least another half an hour or so, because 8 AM onwards the counting will begin. लेकिन विशाल दया, माना ये जा रहा है फिलहाल कि जहां हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर का जो प्रवेश द्वार है असम, वहां पर बीजेपी लगभग दाखिल हो गई लगती है। लेकिन इधर अगर केरल का हम जिक्र करें, बहुत हैरानी की बात होगी कि ऐसे स्टेट में जहां की लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी दोनों की लगातार एक के बाद एक सत्ता एक दूसरे को लेते देते रहे हैं। ऐसे में कम से कम ये माना जा रहा है, जो वहां पर स्थानीय स्तर पर लोग कहते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसको बीजेपी प्रभावित करेगी अगर सीट जीतती है या नहीं जीतती है। कितना महत्वपूर्ण ये केरल की राजनीति के लिए आप देखते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आरफा, आपने जो कंपैरिजन किया पूर्वोत्तर में आसाम राज्य का और केरल में साउथ इंडिया में यहाँ केरल का, तो मैं बताऊं आपको कि लगभग 15 दिन चुनाव के दौरान मैं आसाम में था और वहाँ जिस तरह की सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दी, वो शायद इसलिए थी कि बाकी जो रीजनल आउटफिट्स हैं, बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे असम गण परिषद हो या फिर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, वो एक पर्टिकुलर जो वोटर बेस है उससे आगे नहीं बढ़ पाई। इस वजह से बीजेपी को
मौका मिला वहां अपने पैर पसारने का, वहां एक तरीके से अपने आप को मजबूत करने का, और बाकी पार्टियों से कई सारे नेता उन्होंने लिए, एक गठबंधन बनाया। यहां केरल में बीजेपी एक बड़ा गठबंधन बनाने में सफल नहीं हो पाई। एक नई पार्टी है बीजेडीएस जो चुनाव से ठीक पहले बनी है, उसके साथ गठबंधन बनाया है। और बीजेपी के पास जो केरल में जो नेता हैं वो उनका अगर चुनावी इतिहास देखें तो कोई बहुत बेहतरीन नहीं रहा है। ओ राजगोपाल हैं, वो कभी चुनाव नहीं जीते, वो हर चुनाव में लड़ते रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो नेता हैं उनको भी अगर चुनावी इतिहास देखा जाए तो कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। तो इस वजह से सीधी टक्कर यहां सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा, लगभग 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर कितना वोट बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी को मिलता है वो महत्वपूर्ण है। और वो वोट किसके हिस्से से आएगा, क्या वो यूडीएफ के हिस्से से आएगा या एलडीएफ के हिस्से से आएगा, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर जो जीत का अंतर है वो बहुत कम रहता है। और जिस तरह की लड़ाई हमेशा से पारंपरिक तौर से केरल में देखने को मिलती रही है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे की टक्कर होती है। दोनों ही जो अलायंस है वो एक दूसरे से ज्यादा अंतर नहीं रहता है। अगर आप आखिरी रिजल्ट की बात करें 2011 में भी देखिए, यूडीएफ को सिर्फ एलडीएफ से कुछ ही सीटें ज्यादा मिली थी। इसी तरह का नजारा उससे 10 साल पहले भी देखने को मिला था। इस बार भी बड़ी जिसे कहा जाए क्लोज कॉन्टेस्ट माना जा रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो बीजेपी और उसका सहयोगी दल है उसको कितना वोट मिलेगा, वो वोट प्रतिशत कितना होगा और वो किसके हिस्से का वोट उनके पास जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के लिए। Indeed, it remains to be seen whether or not BJP opens its account in Kerala this time around. But, you know, in the midst of Kerala and Tamil Nadu, we tend to forget the small little union territory of Puducherry. And it is important because there are 30 assembly seats in Puducherry as well, and the results of which will be known in a short while from now. Our correspondent, Ravindra Sharon, is joining us from Puducherry at the moment. Ravindra Sharon, as far as Puducherry is concerned, of course, there have been several demands. They say that there is not enough funds that comes in from the centre, and they want to ensure that Puducherry, gets those extra funds. And everyone has been talking about it. Everyone has been talking about the tourism sector as well. But what is the situation on the ground? What is it that the people of Puducherry have been demanding for? Yeah, good morning, Frank. Puducherry has a very unique character. It's a smallest assembly segment in the whole country, and also the geographical enclaves has been scattered from mainland of the Puducherry to 800 and 900 kilometers away from in Andhra Pradesh, Yanam, and in Kerala's Mahe, and also in Tamil Nadu, that is Karaikal. Karaikal has 5 assembly constituencies, Mahe has 1 constituency, and Yanam has also 1. For these 4 enclaves, total 5 number of election counting centers has been established by the Election Commission this time. Elaborate security arrangement has already been done. Special e-trading has also been designed, a software special has been designed by the Election Commission. Now coming to your point, this is the problem of Pondicherry is that in national media it failed to get any substantial place so far. This is the region the people are not a lot of aware about the politics and the problems of the people of Pondicherry. But this time Rajya Sabha TV has done extensive coverage on this election, and we have keep raising all the issues which are affecting the people of Pondicherry here. Especially as you have talked about the tourism. Tourism is one of the most important sector. This is the backbone of the economy, and it has a lot of influence and of French culture. It was a French colony earlier till 1962. Then it was annexed to India after an agreement. Now the people of Pondicherry are seeking a special package for the development of the tourism sector. There is no airport here. Whoever, especially the foreign tourists who are interested to come and visit the Pondicherry, they have to first go to Chennai, and then by the road they are allowed. They have only way to come here. This is one of the most important issue. The people are saying that if special arrangement has been done, special packages has been done to enhance the infrastructure in this area for the development of tourism, then the people, especially the youth, will not go outside. In last couple of years, this place has seen exodus of the youth only to seek the employment in different parts of the country. Also, one more important thing which I would like to highlight, in the last couple of weeks when the election campaign was on,
a very important issue which took place here was prohibition. The main important two parties, the Congress party and the NR Congress, they have refused to bring prohibition. It has been called as a quixotic and in practical plan, because the main focus, as I told you, the main thrust of the economy here is only on the tourism sector, and in that taking that in view, this is not possible. The political parties are saying that we will not be able to bring prohibition in any form here. Also, but on the other section, we're going to come back to you later on during the course of the day to get more updates from you. But Lakshmanan, as far as Puducherry is concerned, we tend to forget about the small union territory of Puducherry spread across 3 different states. But what's going to happen this time around in Puducherry? I mean, is it going to be the NR Congress, or is it going to be the Congress DMK alliance as exit polls are predicting? I think NR Congress may get a majority, because Congress and DMK never been win the Puducherry in the last few years, a few elections. Either ADMK alliance or Congress and breakaway Congress of Narayan Swamy and so on. So I think it will डेफिनेटली एनआर कांग्रेस में। और कितनी हैरानी की बात है कि एक ऐसी जगह जिसको कि एक टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है, इतना बुनियादी मुद्दा, इसको क्यों नहीं एड्रेस कर पाए अब तक? नहीं, उधर एयरपोर्ट है बट एयरपोर्ट फंक्शन नहीं कर रहा है। As good as not having an airport. पार्षद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। असम पे थोड़ा ध्यान देते हैं और असम को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि जो पूर्वोत्तर है उसका प्रवेश द्वार अगर बीजेपी को मिलता है तो ये कितना महत्वपूर्ण है। इसमें हमें ये भी समझाने की आप कोशिश करें कि जो मुस्लिम वोट है उसको किस तरह से समझा जाए। पूरे देश में सबसे ज़्यादा तादाद जो है किसी राज्य में अगर है, अगर हम छोड़ दें जम्मू एंड कश्मीर को, तो असम में 34% मुस्लिम पॉपुलेशन, उसके बाद अपर असम और लोअर असम को समझने की हम कोशिश करें। जो बदरुद्दीन अजमल हैं वो किस तरह की राजनीति फ़िलहाल स्टेट में कर पाए हैं। पिछली बार हमने देखा चुनाव में कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे और ये एक बड़ा फिनोमिना था कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं। फ़िलहाल बीजेपी का वहाँ पर पैर जमाना, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या ऐसे 3 बिंदु रहे जिस पर लोगों ने बीजेपी पर विश्वास किया होगा? आरफा, हम ये एक चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस जो है पिछले 15 साल से वहाँ हुकूमत में है, तो अगर वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं तो वो बिल्कुल लाजमी बात है। बदलाव किसके लिए दे सकते हैं? वहाँ पे जो पहले लोकल पार्टी थी असम गण परिषद, वो गायब हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है। तो ये उस वैक्यूम में जो है बीजेपी अपने पैर जमाए और मुमकिन है कि उनको कामयाबी हासिल हो इस बार। ये मुस्लिम वोट का जो है, मुस्लिम वोट जो है ये वहाँ का लोकल कंपल्शन है उनके लिए कि उनकी अपना आइडेंटिटी हो। जैसा बोडोस का आइडेंटिटी है, मुस्लिम्स का भी वहाँ पे एक अपना आइडेंटिटी है पॉलिटिकल तौर पर और इकोनॉमिक तौर पर। तो ये बिल्कुल लाजमी बात है कि उनका अपना पार्टी हो, जैसा कि जहाँ वो अपने इंटरेस्ट को या अपने जो प्रायोरिटीज़ है उसको आर्टिकुलेट कर सके। तो इसको हम शायद कम्युनल डिवाइड में नहीं देखना चाहिए। अगर मुस्लिम पार्टी उधर उभरती है या मुस्लिम वोट कोई मुस्लिम पार्टी को जाता है तो एक सोशल रियलिटी है। इसी तौर पर बीजेपी जो है वहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स खेलना तो चाहती है, लेकिन वहाँ पे पावर में आने के बाद या पावर में आने से पहले भी उनको ये तय करना होगा कि जो असम और नॉन असम इसका जो झगड़ा रहा है पहले, जो असम एजिटेशन का बुनियाद रहा है, असम एजिटेशन के जब वो मुखालिफ थे बंगालीज के, जो बंगाली हिंदूज भी थे लेकिन बंगाल माइग्रेंट्स जो डोमिनेट कर रहे थे असम सीन को। उसके बाद जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, और सही बात है कि बीजेपी ने इस बार उसको कम्युनल इसलिए बनाया कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदूज़ को हम रेफ्यूजी स्टेटस देंगे, लेकिन बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं वो इन्फिल्ट्रेशन है उनको हम वापस भेजेंगे या उनको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे असम में पॉलिटिक्स ऐसा है कि असम के हिंदू है, हाओमिया है, वो बांग्लादेशी के खिलाफ इसलिए है कि वो बाहर के, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं। इसी तरह वो बंगालीज के खिलाफ है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बाहर के लोग ना आए।
और असम में बोडो आइडेंटिटी का, बोडो पॉलिटिक्स जो है उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सीन कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो रेफ्यूजी स्टेटस वाली बात है, जिसको इस तरह से नेशनल मीडिया में हम जानते हैं एक बड़ा स्थान मिला और बताया गया कि किस तरह से इतनी बड़ी पार्टी जो है वो इतने बड़े स्टेट में जाके एक आउटराइट कम्युनल पॉलिटिक्स को हमारे सामने रख रही है कि इस धर्म के लोगों को हम देंगे रेफ्यूजी स्टेटस, उस धर्म के लोगों को नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो ये पूरी रेफ्यूजी जो समस्या है, जो लोग आते हैं वहाँ इमिग्रेंट्स, उसको भी समझने की ज़रूरत है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि फ़िलहाल जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो दरअसल उस पूरी राज्य की इकॉनमी का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं जिसको ओवरनाइट जो है दरकिनार करना आसान नहीं होगा। और बीजेपी का ऐसा कहना, एक पार्टी के तौर पर, एक पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ रही है, और जब सत्ता में आने के बाद, सरकार बनाने के बाद शायद उनके लिए बहुत बड़ी फांस होगी। बीजेपी का जो है चुनाव लड़ने का एक तरीका है और सरकार में आने के बाद किसी चीज़ को निपटने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। असम में मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि पोलराइज हो, पोलराइज से उनको फ़ायदा हो, लेकिन वो जानते हैं कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, मुसलमान हो या हिंदू हो, इन्फिल्ट्रेशन एक जो है बहुत ही पिछड़ा मामला है वहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो है, जो आते हैं, जो असम इस इकोनॉमी है, इकोनॉमी का एक हिस्सा बन गए हैं, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी जानती है, ये हकीकत है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो रेटरिक है बीजेपी का और उनका जो काम वो सही करते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसलिए हम इससे ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि रेटरिक जहाँ भी हो, नेशनल लेवल पे भी हो या रीजनल लेवल पे भी, बीजेपी का रेटरिक और गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत ही फर्क रहा है। जी अदिति, ये बताइए फिलहाल कि इस पूरे मुद्दे को अगर इस तरह से भी देखा जाए, जो पूरा ये इमिग्रेंट या इन्फिल्ट्रेटर जो भी इनको कह लेगी, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, इसको आप किस तरह से समझती हैं? 15 सालों में ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी ने उठाया हो। वो अलग बात है कि उन्होंने इसको एक अलग रंग देकर उठा दिया, लेकिन ये मुद्दा रहा राज्य में। कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश रही? क्या इस आरोप में कोई दम है कि चूंकि ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेटर्स या इमिग्रेंट्स आते हैं और उनको लोकल जो पासेस बनते हैं या लोकल जिस तरह से वो वोट करने लायक बन जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं, क्या इस आरोप में कोई दम है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में परंपरागत 3 समुदाय कांग्रेस अपना मानती थी, बल्कि देवकांत बरुआ और अन्य लोगों ने ये घोषणा भी की थी कि जब तक अली, कुली और बंगाली होगा तब तक कांग्रेस पूरी तरह से बरकरार रहेगी सत्ता में असम में। और 15 साल बेगुजार लिए। और 15 साल तो खैर अब की बात है, लेकिन उससे पहले भी जो चाय के बागानों में लोग काम करते थे वे, जो बाहर से लोग आते थे वे, और जो बंगाल से माइग्रेंट्स आते थे वे, वो सब कांग्रेस के समर्थक रहे हैं पहले। और ये एक ऐसी परंपरा है जिससे कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा हट के काम करने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए बदरुद्दीन अजमल का जो का वर्चस्व कुछ इलाकों में है, वो कुछ ही इलाकों में है, पूरे असम में नहीं है। और सीटें भी उन्होंने पूरी नहीं लड़ी हैं, कंटेस्ट भी पूरे पे नहीं किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट को अगर समझने की कोशिश करें तो चूंकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत असर्टिव तरीके से मुस्लिम वोट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और शायद ये फ़ायदा बीजेपी को मिल गया होगा अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से नतीजा आता है। आपको लगता है बट गया होगा वोट? मेरे ख्याल से सभी वर्गों के लोगों ने शायद बीजेपी को वोट दिया होगा। अगर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो एक समुदाय विशेष का ही वोट उनको मिला हो, वो ऐसा हो नहीं सकता है। उसके अलावा जहाँ तक आपने कहा बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना अस्तित्व बहुत ही उसके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है असम में। वो किस तरह की राजनीति करे? अगर बदरुद्दीन, तो इस मुद्दे को हम जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। असम जो है एक बहुत दिलचस्प राज्य के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है कि अगर बीजेपी वहां पर पैर जमाती है तो किस तरह से जो पूरी राजनीति है राज्य की, क्या वो बदलेगी? क्या 1/3 जो पूरी आबादी है मुस्लिम आबादी, क्या वो एक हद तक एलिनेट महसूस करेगी जिस तरह की राजनीति खासकर चुनाव के दौरान देखने को मिली है? ये जिस तरह से पारसा जी कह रहे थे कि शायद एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने के दौरान जो बात होती है और जो सरकार बनने के बाद उसमें बहुत बड़ा फर्क देखा जाता है। Indeed, you know, it remains to be seen what's going to happen during the course of the day. In a couple of minutes from now,
Counting will begin in several thousand counting centers across 4 states and 1 union territory. And we here at Rajya Sabha Television will keep bringing you those updates as and when they happen. But for now, we'll slip into a short break, but we'll be back in just a couple of minutes. Stay tuned.